Hello students, this is 1.83. A particle of mass m moves along a circle of radius r. Find the modulus of the average vector of force acting on the particle over the distance equal to a quarter of circle if the particle moves uniformly with v speed and with constant tangential acceleration omega t, with magnitude of acceleration is constant means, and initial velocity being equal to 0. तो सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान दें जरा सा कि एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है. मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओ है. A particle of mass moves along a circle of radius. Find the modulus of the average vector of force. तो इस आप समझ सकते हैं कि अगर पार्टिकल इस ट्रैक पे घूम रहा है तो एक सेंट्रीपेटल एक टेंजेंशियल फोर्स होगा, तो पार्टिकल पर लगने वाले एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ऑन द पार्टिकल ओवर द डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द सर्कल ए से बी तक. इतने पाथ में हमको ए से बी तक एवरेज कैलकुलेट करना है. इफ द पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली विद स्पीड, द फर्स्ट पार्ट इज यूनिफॉर्मली विद स्पीड. तो सबसे सिंपल है ये पार्ट, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि पार्टिकल जब ए पॉइंट पर है तो उसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड v है और बी पॉइंट पर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है. तो जैसा कि फोर्स का डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स. तो अगर मोमेंटम बॉडी का वेरी कर रहा है तो इट मींस कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पे. यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो इवन कंसिस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रही है, इट मींस मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का कितना होगा इस डायग्राम से देख सकते हैं. एट ए मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी एम वी आई कैप, इट इज एम वी आई कैप, एंड एट बी पॉइंट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी एम वी जे. These are the momentums at the point A and B. So definitely rate of change of momentum. So delta P, dP, the value of dP vector in this much path, and you can write this as delta P here, क्योंकि dP से ज़्यादा clarified delta P में होगा for a long range. But चलिए dP में ही understood करें इसको. So it will be mv j cap minus mv I cap. So it is mv j cap minus I cap. This is the value of change of moment. Is rate of change of momentum. This can be taken as delta p by delta t. यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं d को कन्वर्ट करके डेल्टा में चेंज कर रहा हूँ. आप रीजन समझते हैं क्योंकि d for instantaneous case if you take d then it will be valid, but in other cases for a long range case delta is good in comparison to d. So delta p, rate change of momentum of the body from a point to b point, is mv j minus I, and time taken to reach this much length will be total distance covered. It is 2 pi r 1/4 part of that divided by velocity with which it is moving. So it is pi r by 2. So this much time particle takes to travel from A to B, and this is the change in momentum in this much path. So force vector can be written as delta p, it is mv j minus I divided by total time taken. It is pi r by 2. So force vector is 2mv square by pi r j vector minus I vector, and mod of that force vector will be 2mv square by pi r into mod of j minus I, and you know that this is root. So this is the magnitude of average force acting on the particle, and its direction is j minus I. So in diagram we can see it as j minus I. J is upward and minus I is backward. So from this point to this point, average acceleration direction will be this. This is 45 degree incline from x-axis. एक बार फिर समझे, j vector minus I vector means this is the direction represented in the first case. Second part of the problem is same, but in this case there is some tangential acceleration omega t acting on the particle. Initial velocity is 0. So अगर हम इसी डायग्राम में समझे तो इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी अब 0 है. t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कैलकुलेट किया जा सकता है बाय गैलीलियोस इक्वेशन. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट. सो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कैन बी कैलकुलेटेड एज v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन. इट इज टेंजेंशियल ऑलवेज and displacement along this. So distance is considered as displacement in this problem. ये बात समझे ध्यान से क्या
यहाँ पर बच्चे एक डाउट करते हैं कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट हमें ये लेना चाहिए था, तो पाई आर बाय 2 क्यों लिया गया? तो एक बात समझे, दैट इज ए डॉट एस, इट मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सेलरेशन वेक्टर। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पाथ के अकॉर्डिंगली घूमता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो एक्सेलरेशन के पैरेलल हो। तो जो डिस्टेंस इस एक्सेलरेशन के साथ पैरेललिटी मेंटेन रखेगा हर टाइम पर, वो ये कर्व होगा, रखिए नहीं। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए टू बी होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी को ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है और पाथ के अलोंग रोड घूमेगा, तो हमें डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट की जगह कंसीडर करना होगा। सो v स्क्वायर इज दिस एंड v विल बिकम ओमेगा टाउ एंड पाई आर अंडररूट दिस इज द वेलोसिटी। इसी प्रकार ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि ऐसे अभी तक पार्टिकल ने टाइम कितना यूज किया मूवमेंट के लिए। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं गैलीलियोस फर्स्ट इक्वेशन। बाय दैट इक्वेशन v which has been obtained, it is omega tau and pi r equal to u, it is 0, v equal to u plus acceleration, it is omega tau into t. So time taken in this journey will be under root of pi r by omega tau। यहाँ ध्यान दें कि ये जो मैंने इक्वेशन अप्लाई की है, यह v equal to u plus at है, तो हम t को कैलकुलेट कर सकते हैं, it is under root pi r by omega t। This much time the particle takes to reach up to this much velocity। So as previous discussion, f can be written as delta p change by delta time, that delta p, this is delta t, the time is delta t, and delta p is change in momentum, it is m under root omega tau pi r j cap minus 0 वेक्टर, क्योंकि इनिशियली इस बार वेक्टर 0 है मोमेंटम का, divided by total time taken, it is under root pi r by omega t। So on solving this, it will become omega t can be taken in numerator, omega t into omega t, it is omega, so m omega t and pi r is cancelled pi r, it is m omega t j cap। So in the second problem, the total force exerted on the block from A to B, the average of total force exerted on the block from A to B will be pi omega tau into j vector, it is this। This is the average force acting on the particle from the point A to B। तो एक प्रॉब्लम में ए से बी तक पार्टिकल पे जो फोर्स लगा वो है 2mv स्क्वायर बाय रूट 2 पाई आर, और दूसरे में अगर मैं f का मॉड्यूलस कैलकुलेट करूं केवल, तो वो निकलेगा m ओमेगा टाउ। सो दिस इज द एवरेज फोर्स मैग्नीट्यूड, एवरेज वेक्टर ऑफ फोर्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेक्टर ऑफ फोर्स। तो ए से बी तक की जर्नी में पहले पार्टिकल पर इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट हुआ है एवरेज, और दूसरे पार्टिकल पे m ओमेगा टाउ मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट हुआ है। पहले का डायरेक्शन j माइनस i है और इस प्रॉब्लम में दिस डायरेक्शन इज j। तो a से b तक जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बनेगा वो j वेक्टर बनेगा। तो इस तरीके से एक एक स्टेप समझे और क्लैरिफाई करें। थैंक यू।